اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان چیزوں میں سے جو کہ ہم نے انہیں عطا فرمائی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو کہ آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں کہ جو ان کے رب کی جانب سے ہدایت پر ہوں گے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ، اس کی ابتدائی چند آیات جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ لوگوں نے سنا۔ اس سورہ کا نام سورہ بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورے میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ موضوع کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز کرنا بہت مشکل ہے۔ جیسے سورہ بقرہ ہی کو ہم لے لیں، اس میں سب سے پہلے متقین کا ذکر ہے، پھر کافرین کا، پھر منافقین کا، اس کے بعد تقریباً 15-16 رکوع تک بنی اسرائیل کے نافرمانیاں اور ان کے اخلاقی گراوٹ اور زوال کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر حج اور طلاق اور دین وغیرہ کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں قرآن کی بیشتر صورتوں کے نام عنوان کے بجائے ان کے نام تجویز فرمائے ہیں جو صرف علامت کا کام دیتے ہیں۔ مثلا اس سورہ کو سورہ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں وہ سورہ جس میں گائے کے بارے میں بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ اس سورہ کا بیشتر حصہ ہجرت کے بعد مدنی زندگی کی ابتدائی دور میں نازل کیا گیا، اور بہت کم حصہ ایسا ہے جو کہ بعد کے دور میں نازل ہوا۔ جس وقت تو اسلام کا آغاز اور قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اس وقت جو صورتیں نازل ہو رہی تھیں وہ زیادہ تر عقائد یعنی توحید، رسالت، آخرت پر مبنی تھی۔ لیکن بعد میں جس وقت ہجرت کے بعد مدینہ میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم ہو گئی اور ان کی معاشرتی، تمدنی اور اخلاقی زندگی کے لیے گزارنے کے لیے قوانین کی ضرورت پیش آئی، اس وقت پھر بہت ساری صورتیں احکامات کی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ سورہ بقرہ بھی انہیں صورتوں میں سے ایک ہے۔ اب آئیے ہم ان کی آیتوں پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الف لام میم، یہ حروف مقطعات یعنی توڑ توڑ کر، کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف۔ جیسا کہ عربی زبان کے طرز بیان میں سے ایک طریقہ تھا، اس وقت کے خطیب اور شعراء اس انداز سے اپنے کلام کی ابتدا کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں طریقہ عربی زبان میں متروک ہوتا گیا، چنانچہ پھر مفسرین کے لیے ان کے معنی متعین کرنا دشوار ہو گیا۔ اور یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان حروف کے معنی نہ جاننے سے ہمارے لیے قرآن مجید کو سمجھنے میں یا اس سے ہدایت حاصل کرنے میں کچھ بھی نقص واقع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کتاب کے من جانب باللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، دوسرے معنی یہ ہے کہ اس کی آیات میں، اس کی تعلیمات میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، اور دونوں ہی معنی یہاں پر صحیح ہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ ھدی للمؤمنین نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ھدی للمسلمین نہیں فرمایا، ھدی للمتقین فرمایا۔
यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी बाज दुश्मनान इस्लाम कुरान सुनने की इतनी ज्यादा रगबत रखते थे कि वो रात के अंधेरे में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे तो वो छुप छुप कर सुना करते थे। यहाँ तक कि वो सुनने में इतने महव हो जाते थे कि सुबह हो जाती थी, उन्हें पता ही नहीं चलता, और जब एक दूसरे पर नजर पड़ती तो शर्मिंदा होते और एक दूसरे से वादा लेते कि कल नहीं आएंगे, और हर एक दूसरे दिन ये सोचकर फिर पहुंच जाता कि उसने तो वादा किया वो नहीं आएगा। लेकिन कुरान सुनने का इतना ज्यादा शगफ रखने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत से नहीं नवाजा और वो लोग कुफ्र की हालत पर मरे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुरान मजीद मुत्तकियों के लिए हिदायत नाम है। मुत्तकी, ये तकवा एक दिल की कैफियत का नाम है। हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा दिल की तरफ इशारा करके 3 मरतबा इरशाद फरमाया, अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना। तकवा कोई जाहिरी शक्ल सूरत का नाम नहीं है, बल्कि दिल की सफाई और दिल की खास कैफियत का नाम है। तकवे के मफहूम में डरना और बचना दोनों मफहूम पाए जाते हैं, यानी अल्लाह ताला से डर कर गुनाहों से बचना। और एक बहुत ही आसान मफहूम तकवे का पढ़ने में आया, जिसकी तशरीह में बताया गया था कि वो हर काम करते वक्त हम ये सोच लें कि इस काम करने का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है या मना फरमाया है। अगर हुक्म दिया है हम उस काम को अंजाम दे रहे हैं, और अल्लाह ताला ने जिस काम से मना किया हम उस काम से रुक जा रहे हैं, गोया हम तकवे पर कारबंद है। तो ये बात हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। जब हमारे अंदर तकवा की सिफत होगी तो ये कुरान मजीद हमारे लिए हिदायत का जरिया साबित होगा। उसके बाद अल्लाह ताला और कुछ सिफात बता रहे हैं कुरान मजीद से हिदायत हासिल करने के लिए। पहली सिफत तो तकवा हो गई। दूसरी सिफत जो है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब का मतलब है वो चीजें जो हमारी नजरों से ओझल है, पोशीदा है। मसलन हमने अल्लाह ताला को नहीं देखा, लेकिन ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला मौजूद हैं, अज़ल से हैं, अबद तक रहेंगे। पूरी दुनिया के निज़ाम, पूरी कायनात के निज़ाम अल्लाह ताला संभाले हुए हैं। वही हाकिम, वही खालिक, वही मालिक, वही मुदब्बिर, वही मुंतजिम, और वही सब कुछ है, और उसी अल्लाह ही के हुक्म से पूरी कायनात चल रही है। उसके बाद हम फरिश्तों को नहीं देखें, लेकिन हमारा ईमान है कि फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं जो नूर से बने हैं, और जिस फरिश्ते को अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए मुकर्रर फरमा दिया उस काम को अंजाम दे रहे हैं। हम जन्नत को नहीं देखे हैं, लेकिन ये हमारा ईमान है कि जन्नत अपनी तमाम तर नेमतों के साथ तैयार है, तैयार की नहीं जा रही है बल्कि तैयार है, जिसका तज़किरा कुरान मजीद में जगह जगह आता है। इंशाअल्लाह किसी मौजू से तफसील से उस सिलसिले में बात करेंगे। उसके बाद जहन्नम को भी हमने नहीं देखा है, लेकिन ये हमारा ईमान है कि जहन्नम भी अपनी पूरी हश्र सामानियों के साथ तैयार है। तो ये है गैब पर ईमान लाना। अगर हम गैब पर ईमान लाने की सिफत नहीं होगी हमारे अंदर, तो फिर कुरान मजीद से हिदायत हासिल नहीं हो सकती। उसके बाद वयुकीमून सलात, तीसरी सिफत जो है नमाज कायम, वो नमाज कायम करते हैं। ईमान लाने के बाद सबसे पहली जो मरहला है, सबसे पहला जो मरहला है वो इताअत का है, और इताअत सबसे पहले नमाज में नजर आती है। ईमान लाए अभी चंद घंटे ही होते हैं कि मुअज्जिन पुकारते हैं हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, और वो इंसान जो ईमान से बहरवर हो चुका है फौरन उठकर अल्लाह ताला की तरफ से पुकार पर लब्बैक कहते हुए नमाज में शामिल हो जाता है। गोया उसकी इताअत का इम्तिहान हो जाता है। उसके बाद इकामत सलात एक जामे मफहूम अपने अंदर लिए हुए है। अगर हम अपने तौर से तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं बहुत ही ज्यादा पाबंदी के साथ, तो उस वक्त हम उसे इकामत सलात नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर हम नमाज को कायम करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, एक मस्जिद बनाते हैं, और जिस बस्ती में जमात और जुमा के साथ नमाज हो रही हो उस बस्ती के बारे में कहा जाएगा कि वहाँ पर नमाज कायम की जा रही है। तो ये इकामत सलात जो है इसमें बहुत सारी मसलहतें पोशीदा हैं, और ये भी हमारे लिए जरूरी है कि नमाज को कायम करें। ये तीसरी खूबी। उसके बाद वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उन चीजों में से जो कि हमने उन्हें अता की हैं अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए सबसे पहले माल का नंबर आता है, और
इंफाक उसी को कहा जाता है कि इंसान जो है उसके अंदर माल से मोहब्बत ना हो, दुनिया परस्ती ना हो, और वो अल्लाह ताला के अहकाम को, अल्लाह ताला के दीन को फरोग देने के लिए और अल्लाह ताला के बंदों की मदद करने के लिए अपने हलाल कमाई में से जहां तक मुमकिन हो सके पैसे अल्लाह की राह में इखलास नियत के साथ, नेक जज्बे के साथ खर्च करे। अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हम इस खूबी में इंशाल्लाह पूरे उतर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि उन तमाम चीजें जो हमने उन्हें अता की उनमें से अल्लाह के राह में खर्च करती हैं। माल के साथ साथ अल्लाह ताला ने जो जिंदगी हमें अता फरमाई है, हमें जो मोहलत अमल अता की अल्लाह ताला ने, हमारी एक एक सांस है, हमारी सलाहियतें हैं, हमारा दिमाग है, हमारा जो है तो जिस्म की जो सलाहियतें हैं, जिस्म की जो ताकत है, और उसके अलावा जो वक्त अल्लाह ताला ने हमें दिया है, जो इल्म अल्लाह ताला ने हमें दिया है, उन तमाम को अल्लाह की राह में हम खर्च करें तो इंशाअल्लाह अजीज हम इस जुमरे में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद 5वीं सिफत जो बताई जा रही है, और वो लोग ईमान लाते हैं उस चीज पर जो कि आप यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया और जो कि आपसे पहले लोगों पर नाजिल किया गया। ये 5वीं सिफत है। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमको तमाम रसूलों पर और तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना जरूरी है, और इसका जिक्र इसी पारे के आखिरी रुकू में भी अल्लाह ताला ने इस तरीके से फरमाया है, क़ुलू आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़िला इलैना व मा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात व मा उतिया मूसा व ईसा व मा उतिया नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। यानी अल्लाह ताला तफसील के साथ यहाँ पर जिक्र फरमा रहे हैं कि आप कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो कुछ हम पर नाजिल किया गया उस पर ईमान लाए, जो कुछ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलादों पर नाजिल किया गया, और जो कुछ मूसा ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया और जो कुछ दूसरे अंबिया को दिया गया उस पर भी हम ईमान लाते हैं, और हम उनमें से किसी के भी दरमियान जरा बराबर भी तफरीक नहीं डालते, और हम उन सब पर हम अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के इताअत गुजार हैं। और अगर तमाम लोग ऐसा ही ईमान ले आए जैसा कि तुम ईमान लाए हो तो ये हिदायत पाएंगे, और अगर वो लोग इससे मुंह मोड़ लेते हैं तो फिर वो गुमराही में भटके हुए हैं। गोया ये बात अजहर मिनश शम्स है कि हमें तमाम अंबिया और तमाम रसूलों को मिन जानिबिल्लाह तस्लीम करना जरूरी है, और इस बात को भी मानना जरूरी है कि हम दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई हिदायत के मोहताज हैं, और जब अल्लाह ताला उन हिदायत को भेजते हैं, उन पर हम अमल करते हैं तो हमारी जिंदगी अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक गुजरती है। और अगर खुदा न खास्ता इनमें से किसी भी एक रसूल का हम इनकार करते हैं तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा, और हमारे अंदर वो सिफत नहीं पैदा होगी कुरान मजीद से हिदायत हासिल करने के लिए जो जरूरी है। उसके बाद 6वीं और आखिरी सिफत है वबिल आखिरति हुम यूकिनून, और वो लोग आखिरत का यकीन रखते हैं। मतलब ये कि ये अकीदा रखना हमारे लिए जरूरी है कि हम दुनिया में कोई गैर जिम्मेदार हस्ती नहीं है, एक जिम्मेदार हस्ती की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे हैं, और हमको हमारे एक एक किए का जवाब देना होगा, और यहाँ से जानने के बाद हमारी हर अच्छाई बुराई का बदला हमको मिलने वाला है। आखिरत का यकीन, आखिरत भी हमारे अकायद में से एक अकीदा है। मतलब ये कि हमारा ये अकीदा है कि ये दुनिया जब तक अल्लाह चाहेंगे उसको चलाएंगे, और जब अल्लाह ताला की मर्जी होगी तो इसका खात्मा कर देंगे। इसका तज़किरा कुरान मजीद में जगह जगह मुख्तलिफ मरहले इसके जिक्र किए जाते हैं। वो भी एक अलग मुस्तकिल टॉपिक है, इंशाअल्लाह अजीज वो भी अलग से हम उसको लेंगे। तो मैं ये बता रही थी कि जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे ये दुनिया चलेगी, उसके बाद जब अल्लाह ताला चाहेंगे पूरी दुनिया फना हो जाएगी, और उसके बाद दूसरे मरहले में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरत तक के दुनिया में आने वाले तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा, और उनसे उनके एक एक अमल का हिसाब लिया जाएगा, एक एक अच्छे अमल का उनको जजा दी जाएगी, और हर एक गुनाह की उनको सजा दी जाएगी।
यहाँ तक कि हदीस में ये भी आता है कि अगर किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को सींग मारा होगा तो बगैर उनको भी पैदा किया जाएगा और उसे सींग अता की जाएगी और उससे बदला लेने के लिए कहा जाएगा। बाद में यह है कि जानवरों को मिट्टी कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। दुनिया में अगर हमने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी तो हम उसे देख लेंगे, और जर्रा बराबर ही बुराई की होगी तो उसका भी बदला हमको मिल जाएगा, है ना। एक बात हम जानते हैं कि जर्रा बहुत ही छोटी चीज है जो कि नजर नहीं आती है, मुश्किल से नजर आने वाली चीज है, लेकिन उतनी भी नेकी करने का अगर मौका हमको मिलता है तो हमें उसको जाया नहीं करना चाहिए और उसको जरूर काम में लाना चाहिए। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये खूबियां, ये सिफात, ये अलामतें, ये बातें जिन लोगों के अंदर मौजूद होंगी वही लोग उनके रब की जानिब से हिदायत पर होंगे और वही लोग हकीकत में फलाह पाने वाले होंगे। यानी आखिरत की उखरवी जिंदगी का दारो मदार दुनियावी जिंदगी की कामयाबी या नाकामी पर नहीं है। अगर दुनिया में कोई बहुत खुशहाल नजर आता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कामयाब है। अगर कोई बहुत ज्यादा बदहाल नजर आता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाकाम है, बल्कि जो आखिरत में अल्लाह ताला के बनाए हुए पैमाने पर पूरा उतरेगा, अल्लाह ताला की भेजी हुई तालीमात पर पूरी तौर से अमल करेगा, उसको मानेगा और उसको अपनी जिंदगी में जारी और नाफिज करेगा, कमाहक को उस पर अमल करेगा, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वही लोग हिदायत पर होंगे उनके रब की जानिब से, वही लोग हिदायत पर हैं उनके रब की जानिब से, और हकीकत में वही लोग फलाह पाने वाले हैं। तो हमें ये बात याद रखना चाहिए कि इन चंद आयात में जो खूबियाँ, जो सिफात अल्लाह ताला हमारे अंदर देखना चाहते हैं और जिसे परवान चढ़ाना चाहते हैं, उन खूबियों को, उन सिफात को अपने अंदर हम पैदा करने की कोशिश करें। पिछले दर्स में सूरह फातिहा के दर्स में हमारे सामने ये बात आ चुकी है कि हम उसमें अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह ताला उस सिरात मुस्तकीम को देने के जवाब में पूरा कुरान मजीद हमारे सामने पेश कर देते हैं कि ये है वो सिरात मुस्तकीम जो तुम मांग रहे हो, ये है वो तालीमात, ये है वो रोशन दलाइल और ये हैं वो आयतें जिनको पढ़ के, जिनको समझ के, जिन पर अमल करके तुम सिरात मुस्तकीम पा सकते हो, जिससे बढ़कर दुनिया और आखिरत में कोई दौलत नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन तमाम बातों पर ज्यादा से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।